Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the third chapter of class 5th. This chapter is from unit 3rd, human body and its need. Human body और उसकी जरूरतें. The chapter name is the skeleton system. Skeletal system के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. Let's start. These are some learning outcomes. The skeletal system, parts of the skeleton, cartilage, joint, muscular system, importance of muscles, care of bones, muscles and joint. Now it's time for tune up. Look at the picture given below and fill in the blanks. Space given below. This is skull, this is rib cage, this is backbone, this is girdle. Now let's start the chapter. In our previous class, you have already studied about our body is composed of cell. अपनी previous class में आप already पढ़ चुके हैं कि हमारी body किससे composed है, किससे बनी हुई है, cell से. There are trillions of cells in human body. Human body में trillions of cells होते हैं. The cells that perform a common function are grouped together to form a tissue. जो cells जो perform करते हैं common function, वो group में होते हैं, together मिलकर क्या बनाते हैं, tissue बनाते हैं. The tissue that carry out the same task from an origin. जो tissue एक ही task को करते हैं, same task को, उसको हम organ बोलते हैं. A group of organs that work together and carry out a function is called an organ system. ऑर्गन के ग्रुप को जो एक साथ वर्क करते हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड टुगेदर मेकअप एन ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस और एक साथ मिलकर ये बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. द बोन इन आवर बॉडी फॉर्म आर स्केलेटल सिस्टम. जो बोन होती है, हमारी बोन्स होती है, बोन्स होती है, जो बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी की, वो बनाती है स्केलेटल सिस्टम. एंड मसल्स फॉर्म अ मस्कुलर सिस्टम. और मसल्स क्या बनाती है, मस्कुलर सिस्टम्स बनाती है. Bones are made of minerals, mainly calcium and phosphorus. Bones minerals से बनी होती है, mainly calcium और phosphorus से. A bone has a thick outer wall which is very hard. Bone की एक बहुत thick outer wall होती है जो बहुत ही hard होती है. The hardness gives support and protection to our body. वही hardness हमारी body को support करती है और protection देती है. The inside of some bones is soft and spongy. जो अंदर होता है इन bones के, वो बहुत soft और spongy होता है. The innermost part of the bone marrow is like a thick jelly. जो इंटरमोस्ट पार्ट होता है बोन का, वो बोन मैरो होता है जो कि एक थिक जेली के जैसा होता है. लेट्स नो. A baby bone has about 300 bones at birth. बेबी की बर्थ के टाइम में 300 बोन्स होती है. These eventually fuse to form the 206 bones that adult have. और फिर वो धीरे धीरे मिलकर 206 बना देती है बोन्स जो एक अडल्ट के होती है. बोथ टीथ एंड बोन्स आर हार्ड. टीथ और बोन दोनों हार्ड होते हैं, बट बोन्स आर स्टिल नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टीथ. लेकिन बोन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितने की टीथ होते हैं. Now the skeletal system. The skeletal system is a framework of bones that impart shape and support to our body. जो skeletal system होता है वो एक framework होता है bones का जो हमारे body को shape देता है और support करता है. Without the skeletal system, our body will simply collapse like a pack of cards. बिना skeletal system के हमारी body simply collapse कर जाएगी जैसे पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक. द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल बोन्स इन द बॉडी एंड द जॉइंट. जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें कंसिस्ट होते हैं सारे बोन्स और सारे इन द बॉडी, जो भी बोन्स होते हैं बॉडी में, और जो जॉइंट्स होते हैं. आवर बॉडी हैज बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. हमारी बॉडी के अलग अलग शेप और साइज की बोन्स होती हैं. ऑल दीज बोन्स आर जॉइंट टुगेदर एंड दिस इज टर्म एज द स्केलेटल सिस्टम. सारी बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इसी
इसी को हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली द पिक्चर गिवन अलोंग साइड, यहाँ पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। इट शोज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, ये शो कर रही है डिफरेंट पार्ट ह्यूमन स्केलेटन का। दिस इज नी, दिस इज थाई बोन, दिस इज आर्म बोन, दिस इज एल्बो, दिस इज जॉ, दिस इज स्कल, एंकल, हिप गिर्डल, बैकबोन और रिब केज। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? द स्केलेटल फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क विच सपोर्ट द बॉडी, स्केलेटन फॉर्म करता है एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। टुगेदर विद द मसल्स एंड जॉइंट इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मसल्स और जॉइंट्स मिलकर ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मेनी पार्ट ऑफ द स्केलेटन एनक्लोज द प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन सच एज स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। vertebral column protect the spinal cord and rib and sternum, rib cage protect करती है हमारे हार्ट को और लंग्स को। इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग में भी हेल्प करती है। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, आइए पढ़ते हैं डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्केलेटल सिस्टम के। हाउ मेनी बोन्स आर न्यू बॉर्न बेबी हैव? 300, कितनी बोन्स होती हैं न्यू बॉर्न बेबी में? 300 बोन्स होती हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन के पार्ट, स्केलेटन में क्या होता है? द स्कल, स्कल होता है। The skull is made up of 8 flat bone, स्कल बना होता है, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्कल, स्कल बना होता है 8 फ्लैट बोन से विच आर इंटरलॉक्ड टुगेदर, जो आपस में इंटरलॉक्ड होती हैं। दे एनक्लोज द डेलिकेट ब्रेन, ये ब्रेन के बहुत एनक्लोज होती है। देर आर 14 फेशियल बोन दैट फॉर्म्स द फेस, इसमें 14 फेशियल बोन होती है जिससे फेस बनता है। दीज बोन प्रोटेक्ट द मेजर सेंस ऑर्गन, ये बोन्स प्रोटेक्ट करती है मेजर सेंस ऑर्गन को। नाउ द बैकबोन एंड और स्पाइन, बैकबोन और स्पाइन के बारे में पढ़ते हैं। द स्कल रेस्ट ऑन द बैकबोन विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, जो स्कल होती है स्कल रेस्ट ऑन द बैकबोन, उस पर बैकबोन रेस्ट करती है विच फॉर्म द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, जो मेन एक्सिस बनाता है स्केलेटन का। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन, जो बैकबोन होती है वो 33 स्मॉल बोन से बनी होती है। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रे, द vertebrae are all linked together, ये आपस में जुड़ी होती है। द बैकबोन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। Let's know the floating rib do not float around inside our body, they are attached to our backbone. Sometimes people can be born with extra ribs, कभी कभी लोग एक्स्ट्रा रिब के साथ भी बॉर्न होते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक, टाइगर एंड फ्रॉग्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड vertebrates, earthworm and snail are intervertebrates because they do not have backbone. Now the rib cage, the ribs make a cage of bone अराउंड द चेस्ट कॉल्ड द रिब केज, रिब एक केज बना देती है हमारे बोन्स का चेस्ट के अराउंड में, उसको रिब केज बोला जाता है। द बोन इन द मिडल ऑफ द रिब केज इज कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम, जो बोन होती है मिडिल में रिब केज के उसको ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम बोला जाता है। द लॉन्ग कर्व्ड बोन अटैच्ड टू इट एंड कॉल्ड द रिब, जो लॉन्ग कर्व्ड बोन होती है इससे अटैच होती है उसको रिब बोला जाता है। ऑल द 12 पेयर ऑफ रिब आर जॉइंड एट द बैक टू द बैकबोन बट ओनली द फर्स्ट 10 पेयर आर जॉइंड इन फ्रंट ऑफ टू द backbones, breastbone. All the 12 pair of rib are joined, जितनी भी 12 पेयर होती है वो ज्वाइन होती है बैक से, लेकिन जो फर्स्ट 10 पेयर होते हैं वो ही फ्रंट में ज्वाइन होते हैं ब्रेस्ट बोन से। This is why the last 2 pair are called floating rib, इसीलिए लास्ट की जो 2 रिब्स हैं उनको floating ribs बोला जाता है। The rib cage is formed by the rib, the vertebral column and the breastbone. Now the limbs, limbs क्या होते हैं? Our body have 2 pairs of limb, हमारी बॉडी के 2 pairs of limbs होते हैं। A pair of 4 limbs, एक 4 limbs या arms उनको बोला जाता है, और या फिर a pair of एक होता है a pair of hind limbs जिसको legs बोला जाता है। The bone of the arms are joined to the spine by the pectoral, शोल्डर, ग्रिडल और कॉलर बोन, जो बोन होती है आर्म्स की वो ज्वाइन होती है स्पाइन से, किससे? पेक्टोरल जिसको शोल्डर या ग्रिडल या फिर एंड कॉलर बोन के साथ। इन द अपर आर्म्स देयर इज ओनली 1 बोन, अपर आर्म में एक बोन होती है। इन द लोअर आर्म देयर आर 2 बोन्स, अपर आर्म ये होता है इसमें 1 बोन होती है, लोअर आर्म में 2 बोन्स होती है। द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज द
हम यहाँ पर थे। द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज द फीमर और थाई बोन। जो लार्जेस्ट बोन होती है पूरी बॉडी की वो फीमर होता है उसका नाम, और वो थाई बोन होती है। दिस बोन फिट्स इनटू द पेल्विक या हिप्स गिrdle। ये पेल्विक गिrdle, ये बोन जुड़ी होती है पेल्विक या हिप गिrdle से। एट द नी इट इज जॉइंट टू द अदर बोन ऑफ द लेग। नी पर ये दूसरे बोन से जॉइंट हो जाती है। द एंकल एंड द टो ऑल्सो कंटेन मेनी स्मॉल बोन। एंकल और टो में भी बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल बोन्स होती हैं। girdle, there is a pair of pectoral girdle that forms the shoulder and a pair of pelvic girdle that forms the hip। जो hip को बनाती है। the upper limbs are attached to the pectoral girdle and the lower limbs attached to the pelvic girdle। now cartilage। cartilage क्या होता है? Cartilage is an important structural component of the body। cartilage एक important structural component होता है body का। it is a firm tissue but it is softer and much more flexible than bone। ये firm tissue होता है लेकिन बहुत soft होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है बोन से। कार्टिलेज इज एन कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन मेनी एरिया ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के बहुत सारे एरिया में पाया जाता है, इंक्लूडिंग एंड ऑफ द रिब्स, रिब्स के एंड में, बिटवीन द वर्टिब्रेज इन द स्पाइन, ईयर्स एंड नोज, और bronchial tube and or airways, joint between bones, that is the elbow, knees and ankles। Name the pair of limbs। Hind limbs, what is cartilage? Cartilage is a soft and flexible than bones that is present in our body। now come to the joints। our body can perform different motion because we have joints। हमारी बॉडी बहुत सारे मोशन को परफॉर्म करती है क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। जिस प्लेस पर दो बोन्स मिलती हैं उसको जॉइंट बोलते हैं। द बोन्स आर होल्ड टुगेदर एट जॉइंट बाय बेंड्स ऑफ फाइब्रियस इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। बोन्स एक दूसरे को होल्ड करके रखती हैं जॉइंट पर, जिस इलास्टिक टिश्यू के थ्रू, जिसको लिगामेंट्स बोला जाता है। द लिगामेंट्स होल्ड द बोन एट द प्लेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग अपार्ट। लिगामेंट्स होल्ड करता है बोन्स को एक प्लेस पर और प्रिवेंट करता है उसको इधर उधर होने से। टाइप्स ऑफ जॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट। दो टाइप के जॉइंट होते हैं। एक मूवेबल जॉइंट होता है। जॉइंट विच अलाउ मूवमेंट इन द बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट। जॉइंट जो अलाउ करते हैं मूवमेंट को बॉडी की, उसको मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। दे अकर्स इन लिम्स विच अलाउ फ्री मूवमेंट। ये लिम्स में अकर करते हैं जो फ्री मूवमेंट देते हैं। The movable joint are of the following type। movable joint होते हैं hinge joint। this joint work like a hinge in the door। ये वर्क करता है जैसे डोर में hinge होते हैं। it allow only back and forth movement that is bone in the knees, elbows, finger and toe। जो knees में, elbows में और finger और toe में जो होती है bones, उनको hinge joint बोलते हैं। ball and socket joint। ball and socket joint कौन से होते हैं? the shoulder and the hip joint which move like a ball। जो shoulder joint और hip joint जो होते हैं, जो बॉल की तरह काम करते हैं, इन अ कप आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टेब्रास एंड द बैक ऑफ द बैकबोन। ये पाइवोट जॉइंट होते हैं जो स्कल में मिलते हैं और बैकबोन में मिलता है। इट अलाउ द हेड टू मूव अप एंड डाउन एंड साइडवेज। ये हेड को अलाउ करता है अप और डाउन करने में और साइड करने में। ग्लिडिंग जॉइंट, gliding joint in the wrist and ankle and the backbone which allow the movement in all direction। जो all direction में move करती है वो bone होती है gliding joint। here the bone sliding over each other। this is the ball and socket joint, hinge joint, pivot joint और gliding joint।
नेक्स्ट इज इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट क्या होते हैं? जॉइंट ऑन द स्कल, ब्रेस्ट बोन एंड बिटवीन द रिब्स डू नॉट मूव। जॉइंट स्कल के बीच में, ब्रेस्ट बोन के बीच में जो होते हैं बिटवीन रिब्स के बीच में, वो मूव नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट। Next is muscular system. Muscles below our skin and above our bones lie soft tissue called muscles. हमारी स्किन के अंदर और बोन्स के ऊपर एक सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिसको मसल्स बोलते हैं। Our body consists of more than 600 muscles. हमारी बॉडी में 600 मसल्स से भी ज्यादा है। Muscles are attached to the skeleton. Muscles attach होते हैं skeleton से। They are joined to a bone by a strong and tough band called tendons. ये ज्वाइंट होते हैं बोन से एक स्ट्रॉन्ग और टफ बेंड के साथ जिसको टेंडन्स बोला जाता है। द मेन वर्क ऑफ द मसल सिस्टम इज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी अलोंग विद द स्केलेटल सिस्टम। नाउ हाउ डू मसल्स वर्क? मसल्स कैसे काम करते हैं? मसल्स ऑफ आवर बॉडी कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश। मसल्स पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। टू मसल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव अ बोन एट जॉइंट। दो मसल रिक्वायरमेंट होते हैं एक बोन को जॉइंट पे मूव कराने के लिए। मसल्स वर्क इन पेयर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। मसल्स वर्क करते हैं पेयर में, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग करने में। व्हेन योर बाइसेप मसल्स इज योर अपर आर्म्स कॉन्ट्रास्ट इट पुल योर लोअर आर्म्स टू इन टुवर्ड्स योर शोल्डर। जब आपके बाइसेप मसल इन योर अपर आर्म्स कंट्रास्ट करते हैं तो ये पुल करते हैं लोअर आर्म्स को टुवर्ड्स योर शोल्डर, अपने तुम्हारे शोल्डर की तरफ। हाउएवर व्हेन इट रिलैक्स योर बाइसेप्स कैन नॉट push your arms back out. To do this, your tricep muscle on the underside of your upper arms contrast and straighten your arms out. If your tricep muscle wasn't there, your arm would stay down in permanently. Now types of muscles. Muscles के कितने टाइप होते हैं? Our muscular system consists of 3 different type of muscle. हमारे muscular system में 3 different types of muscles होते हैं। Voluntary muscles, the muscles which cannot control ourselves are called the voluntary muscles. Muscles जो control नहीं कर सकते हमको, उसको voluntary muscles बोलते हैं। These muscles are found in arms, legs and eyes. ये मसल्स होते हैं आर्म्स, लेग्स और आईज में। These muscles have stripes on them. इन मसल्स में स्ट्राइप्स होती हैं just like the stripes on the body of zebra. जैसे जेब्रा की बॉडी में स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें स्ट्रिप्स होती हैं। That is why they are called the restricted muscles. Now involuntary muscles. Involuntary muscles क्या होती है? These muscles are found in walls of the internal organs like gallbladders, digestive tract and intestine etc. ये muscles पाई जाती हैं internal organs की wall पर, जैसे gall bladder होता है और digestive tract होता है, intestine होता है। They are controlled by the brain and the spinal cord. ये control होती है brain और spinal cord से। These muscles are also called smooth muscles. इन muscles को smooth muscles भी बोला जाता है। They work on their own. ये अपने आप से ही काम करती है। We cannot control the action of the smooth muscle. हम इन smooth muscle को एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल्स होती हैं। These muscles are found in the heart. ये मसल्स हार्ट में मिलती हैं। They are involuntary and work throughout our life without stopping or getting tired. ये क्या होती है? इनवॉलंटरी होती है और वर्क करती है हमारी पूरी लाइफ बिना रुके और बिना थके। We can make our muscles strong and keep them in good shape by exercising, playing and maintaining correct posture. हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उनको गुड शेप में रख सकते हैं एक्सरसाइज करके, प्लेइंग करके और अपने करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करके। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मसल्स। मसल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है? मसल्स आर इंपॉर्टेंट इन वेरियस वेज। मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे तरीकों में। दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बोन। ये मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं बोन्स की। दे प्रोवाइड मूवमेंट टू द इंटरनल ऑर्गन फॉर परफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज विद इन द बॉडी। ये प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट इंटरनल ऑर्गन को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स लेट द हार्ट टू पंप द ब्लड। इसके एग्जांपल में है कि जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है कार्डियक मसल्स का, जो हमारे हार्ट को हर्ट करता है ब्लड को पंप करने में। सिमिलरली द फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ सोफेगस। मसल्स आर आल्सो रेगुलेट बॉडी हीट। मसल्स हमारी बॉडी हीट को भी रेगुलेट करता है। नाउ केयर ऑफ बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट।
केयर कैसे करते हैं बोन्स की, मसल्स की और जॉइंट की। एज वी हैव लर्न दैट बोन्स एंड जॉइंट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ देम। जैसा कि हमने पढ़ा है कि बोन्स और जॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, तो इनकी टेक केयर करना भी बहुत जरूरी है। वी कैन कीप आवर बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट हेल्दी इन द फॉलोइंग वेज। हम अपने बोन्स, मसल्स और जॉइंट को हेल्दी रख सकते हैं कुछ वेज को फॉलो करके। ईटिंग अ बैलेंस अमाउंट ऑफ फूड आइटम्स दैट मेक बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। हमें बैलेंस अमाउंट ऑफ फूड खाना चाहिए हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर एंड डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, गुड पोस्चर रखना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। नाउ वर्ड एट जॉइंट्स मतलब होता है प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। कार्टिलेज आर दो इलास्टिक सब्सटेंस दैट होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट। स्पाइनल कॉर्ड मतलब होता है थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यू। नाउ क्विक रिकॉल इज देयर आर ट्रिलियंस of cell in a human body. A group of organs that work together and carry out a function is called an organ system. The skull, the rib cage, the backbone, the limbs are the different part of a human skeleton system. Bones give shape and strength to the body. Joints are of two types, movable or immovable. Muscles also regulate body heat. Now it's time for exercise. Take right the correct option. The joint between the skull and the first two vertebrae of the backbone is called pivot joint. Vertebral column protect the spinal cord. There are dash type of joint, two types of joint. The skull protects the brain. स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. रिब्स एंड स्टर्नम प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. Heart and lungs. Now fill in the blanks using the help box. The backbone protect करती है spinal cord को. Muscles also regulate करते हैं body heat को. Inside each bone there is a jelly-like substance called fibula. Two muscles are required to move a bone at joint. The longest bone in the body is femur. जो longest bone है वो femur है. Now working of the stomach is caused due to voluntary muscles. This is true. The rib cage enable any movement. This is true. Come to the next one. Muscles are joined to bone by ligament. This is also true. Ball and socket joint allow movement in many directions. This is false. The voluntary muscles can control ourselves. This is false. Now answer the following question. It is the difference between bone and muscles? Explain. Bone और muscles में क्या difference होता है? आइए देखते हैं. Bones क्या होती हैं? Bone are made of minerals, many calcium and phosphorus. A bone has a thick outer wall which is very hard. The hardness gives support and protection to our body. The inside of the bone is soft and spongy. The innermost part of the bone marrow is like a thick jelly. और muscles क्या होती हैं? मसल्स क्या होती है? below our skin and above the bones lie soft tissue called muscles. Our body consists of more than 600 muscles. या हम इसे लिख सकते हैं muscles are attached to the skeleton. Now come to the next question. The next question is, list any two important function of a skeletal system. Skeletal system के two important functions लिखने हैं. यहां से दो इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां से लिख सकते हैं. ये दोनों पॉइंट्स आप लिखेंगे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the different type of movable joint in our body? The movable joint, different type of movable joint बताने हैं हमारी बॉडी के.
The movable joint are of the following type: hinge joint, ball and socket joint, pivot joint, or gliding joint. Now come to the next question. Define muscles. Give the importance of muscles. Muscles को define करना है, उसकी importance बतानी है. मसल्स को अभी जैसे हमने उसका आंसर यहां से यहां तक करेंगे. ये क्या करती है? द मेन वर्क ऑफ द मसल सिस्टम इज प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी अलोंग विद द स्केलेटल सिस्टम. Come to the next. Apply your knowledge. Brain teaser. Why are ligament necessary? Ligament क्यों जरूरी होती है? Ligament हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं. ये हमारी बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और उनको मूवेबल बनाते हैं. सब्जेक्ट लिंकिंग. इमेज डेटा जर्म्स ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी. इमेजिन करिए कि एक जर्म ट्रेवल कर रहा है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में. विच प्लेस डज इट विजिट? कौन सा प्लेस वो विजिट करेगा? क्रिएट अगली जर्म्स एंड राइट इट्स ट्रेवलोज इन योर साइंस फाइल. आपको एक अगली जर्म बनाना है, उसके ट्रेवल को साइंस फाइल में बनाना है. डेकोरेट विद पिक्चर एंड फैक्ट्स. उसको डेकोरेट करना है पिक्चर और फैक्ट के साथ. प्रोजेक्ट वर्क. कलेक्ट द मटेरियल लाइक बीड्स, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रॉड एंड थिन रबर वॉशर्स. आपको कलेक्ट करने हैं मटेरियल जैसे बीड्स, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक रॉड और थिन रबर वॉशर. यूज दैम टू शो द पोजीशन ऑफ द vertebrae, spinal cord, cartilage and vertebral column. Label the part of they represent. Now life skill is always follow healthy habits like doing regular exercise and maintaining correct body posture. हमेशा फॉलो करें healthy habits, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करें और मेंटेन करें करेक्ट बॉडी पोस्चर को. दिस विल हेल्प टू कीप योर हेल्दी एंड फिट. ये तो आपको हेल्प करेगा हेल्दी रहने में और फिट रहने में. थैंक यू स्टूडेंट.